Good morning, students. Today is lecture number 2 on logarithmic tables. So before starting with this lecture, let us quickly recall what we did in the previous class. The first ever exercise was, what is the meaning of exponential form or power form or index form? Right? This part of the board is coming? Yes? So I will just write the revision part. This is the revision part. If we write 2 cube as 8, right, then 2 is the base, 3 is the index or power or exponent, and 8 is the answer, right? So this is base, this is index or power or exponent, and this is the answer. Then how do we convert this into logarithmic form? Log of answer to the base is equal to index. Yes or no? Log of answer to the base is equal to index. In ulta words, we say that base raised to index is answer. Base raised to index is answer. Suppose I write this: log of 256 to the base 4 is 4. Then how do I write it? 4 raised to 4, है ना? Base raised to index is answer. Confirm? If I write log of 1000 to the base 10 is 3, then can I say 10 raised to 3 is 1000? Yes or no? So, how to convert exponential rate form into logarithmic form, and how to convert logarithmic form into exponential form understood. Base raised to index is answer. This was the first exercise. After that, we said that expressing the numbers in scientific form is very, very, very important, because in physics you are going to deal with gigantic world. Means you are going to talk about planets, you are going to talk about stars, you are going to talk about galaxies, you are going to talk about very large distances. On the other hand, you are going to talk about very small things also. For example, you are going to talk about mass of a proton, which is 1.66 into 10 raised to minus 27 kilograms. You are going to talk about mass of the electron, which is further smaller than a proton. The mass is 9.1 into 10 raised to minus 31. Now, what do I mean by this? If I try to write mass of the earth, then mass of the earth is this: 6 million kilogram. That means it is 6. 1 million is 10 lakhs. 1 kilo is 1000. Mega or million is 10 lakhs. Giga or billion is 10 raised to 9. Tera or trillion is 10 raised to 12. 10 raised to 3, 10 raised to 6, 10 raised to 9, 10 raised to 12. In future, you are going to learn 10 raised to 15 also, 18 also, and so on. Or else you can combine the words and you can use it. For example, when I say million billion, when I say million billion, that means it is 10 raised to 6 into 10 raised to 9, that is 10 raised to 15. If I say billion billion, then it is 10 raised to 18. If I say million billion billion, that means it is 10 raised to 6 and 10 raised to 9 and 10 raised to 9, that is 10 raised to 24. So, if I write mass of the earth like this, don't you think this is inconvenient way of writing it? Right? In place of that, in simple language, I say it is 6 into 10 raised to 24. Then can I say it is the easiest way of writing it? Likewise, if I try to write down the mass of the electron in my day-to-day life language, then it is 0. 6 zeros, 6 more, 6 more, 6 more, 6 more. Right? That means 0.30 zeros and then 91 comes. Right? So if I write this in scientific language, it is 9.1 into 10 raised to minus 31. Because the decimal point has to come after 9. So 30 zeros from here and 1 zero from here. Total 31 zeros. So tell me which is easy, writing this way or writing this way? Obviously writing this way. So what is the meaning of scientific way of writing the number? Whatever number you are writing, the decimal point should come after first digit followed by power of 10, and that power of 10 may be plus power, may be minus power.
let me give you some very simple examples from practical life. Your age is say 15 years. 15 years. So when you say, sir, I am 15 years old, I will say, okay, you are 1.5 into 10 raised to 1 year old. Right? I will say you are 1.5 into 10 raised to 1 year old. Now 15 years means 180 months. Because 1 year is 12 months. So now you are saying, sir, I am 180 months old. Okay, I will say you are 1.8 into 10 raised to 2 months old. Yes or no? One day is 24 hours. And 24 hours means 86,400 seconds. 86,400 seconds. So when you say, sir, length of the day is this much, so many seconds. So how will you write this scientifically? 8.64 into 10 raised to plus 4. Yes or no? Yes. Right? Now if I say the thickness of your hair is 0.000000123 meter, right? Means it is actually speaking in micron. Micron means millionth part. जैसे 10⁻³ is kilo, वैसे 1/10⁻³ is milli. जैसे 10⁻6 is million, वैसे 1/10⁻6 is micro. 10⁻⁻6. जैसे 10⁻9 is billion. Likewise 1/10⁻9, that is 10⁻⁻9 is nano. If I count this as 10⁻0, 10⁻3 is kilo, 10⁻6 is mega, 10⁻9 is giga, 10⁻12 is tera. अब अगर बेटा ये 10⁻3 है तो मैं ये साइड पे गया तो ये 1/10⁻3 है, which is 10⁻³ -6 -9 -12 milli, micro, nano, pico, femto, atto. Yes or no? Are you getting this? This goes on and on and on and on and on. So 10⁻² plus powers and 10⁻² minus powers. तो इसको बेटा आप साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? ये आपके पास डेसिमल पॉइंट इधर है. Right? Now you have to shift the decimal point to the right side such that it should come after first digit which is non-zero. First digit which is non-zero. से डेसिमल पॉइंट ने एक प्लेस शिफ्ट किया, दूसरा प्लेस शिफ्ट किया, तीसरा प्लेस शिफ्ट किया, चौथा प्लेस शिफ्ट किया, पांचवा प्लेस शिफ्ट किया, सिक्स्थ प्लेस. So how will you write this? 1.23 into 10⁻⁻6. Yes or no? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे स्टॉप किया था. If this is your number line and if this is 0, 1, 2, 3, 4 on right side goes up to infinity. -1, -2, -3, -4 on the left side goes up to infinity. So जहाँ पे 0 है उसके ऊपर आप लिखोगे 10⁻0 and this becomes your reference point. मतलब किसका राइट साइड पे जाना है कि किसका लेफ्ट साइड पे जाना है. You should take always help of this. Yes or no? So 1 के ऊपर 10⁻1, 2 के ऊपर 10⁻2, 3 के ऊपर 10⁻3, likewise -1 के ऊपर 10⁻1, 10⁻2 and so on. Right? And then the literature which was being given to you, that is this page. Your very first exercise was laws of logarithms. What were the laws of logarithms? Let us quickly recall. Log of m into n is log of m plus log of n. Log of m upon n is log of m minus log of n. So how do we use this in language? Log of product is sum of logs. Log of division is subtraction of logs. Log of m raised to n is n log m. Mind you, log of m the whole raised to n नहीं होना चाहिए, मैंने लिखवाया था वो, बराबर. Then log of any number to the same base is always what? What do I mean by that? Log of m to the base m is 1. अभी बेटा मुझे इसको कंफर्म करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है. Can I say base raised to index is answer, m raised to 1 is m. Yes or no? मैडम चाय पियो, कॉफी पियो, जबरदस्त नींद आ रही है तुझे, कैसे साइंस की पढ़ाई करेंगे? Don't worry, you are not recorded in the video. Audience can see only my face.
हाँ, next time बराबर से नींद लेके आने का. You have to be very alert when you are a science student. Okay. Thereafter, log of 1 to any base is always 0. Confirm करते हैं. Base raised to index is answer. M raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is always 1. Yes or no? तो बेटा अभी तक मैंने जो भी बोला that was the revision of lecture number 1. And now we are starting with lecture number 2. But before that, please check. ये जो आपके पास टेबल है फर्स्ट पेज पे, बराबर, there are 15 numbers over there, right? And we last time wrote only the scientific form of that. Are there these numbers? Check. I'll just give you a quick recap of this also. The first number is 14.57. The decimal point should come after first digit. Should it be 1.457 into 10 to plus 1? How is the decimal point shifting? To the left ki to the right? To the left. So the power should shift to the right by the same number of places. The decimal point is shifting to the left by how many places? 1. So the power should be 10 raised to plus 1. The decimal point is shifting by how many places? 2. Power should be 10 raised to 2. The decimal point is shifting by how many places? 3. To the left ki to the right? Left. So the power should be to the right. Fourth wala officially scientific form, because the decimal point is officially after the first digit. But still, if I want to write the power of 10, can I write it as 10 is to 0? Because I am not shifting the decimal point to the left also. I am not shifting the decimal point to the right also. Means I am where I am. That means 10 is to 0. Because anything raised to 0 is 1. Yes or no? So I end up to the same answer. So if you see fourth one and if you see 10th one, are they officially in scientific form? तो मुझे उसमें कुछ नहीं करना है. Right? Now, style is changing. It is 0.1539. That means this time the decimal point is shifting to the right side. By how many places? 1. So over here it should be 10 raised to minus 1. By how many places? 2. By how many places? 3. By how many places? 3. Over here it was 5, right? So this is 10 to minus 5. This is 3 again. Now again something new. ध्यान से सुनो बेटा. This is 12.34. Not only that, 10 raised to 2 also. अब एकदम फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, it was just 14.57. Now this is 12.34 also and 10 raised to 2 also. So how will you write 12.34? Is it 1.234 into 10 raised to 1 into 10 raised to 1 and 10 raised to 2 also is there? So वो तो as it is लिखने का. तो बेटा ओवरऑल पावर क्या हो गया? 1.234 into 10 raised to plus 3. Yes or no? Next one. Officially scientific form. So leave it. इसको कैसे लिखोगे? 1.473 into 10 raised to 4. So this is 1.473 into 10 raised to 2 and 10 raised to 4. So can I say overall power हो गया 10 raised to plus 6. What about the next one? 9.657 into 10 raised to plus 1 into 10 raised to minus 2. Yes or no? And therefore it is 10 raised to minus 1. Logic समझा बेटा? ये पूरा कॉलम समझा आपको? Now we are coming to column number 2, जहाँ पे लिखा है characteristic. Characteristic is very simple, extremely simple. Power of 10 becomes characteristic. What is the rule? Power of 10 becomes characteristic, right? यहाँ पे बेटा power of 10 क्या है? लेकिन compulsory condition क्या है? After you write your number in scientific form, right? तो जो characteristic है ना, उसके ऊपर एक हल्का सा स्मॉल हैंड राइटिंग्स में लिख के रखो. पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक फॉर्म बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक. पावर ऑफ 10 in scientific form. Power of 10 in scientific form becomes characteristic. Power of 10 in scientific form is nothing but characteristic. तो बेटा ये 15 क्वेश्चंस आप 15 सेकंड में आंसर कर सकते हो. Shall I start filling the blanks up? शुरू करो. चलो बेटा पहले का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, सुन रहा हूं. दूसरा वाला बोलो, तीसरा वाला बोलो, चौथा वाला बोलो,
वेरी गुड, पांचवा वाला बोलो। रुको, नाउ देयर इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। हम लोग उसको -1 नहीं लिखते हैं, इसको 1 के ऊपर ऐसा साइन लिखते हैं, एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बार 1। हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड? बार 1, दैट्स इट। तो नेगेटिव जो पावर है ना, तो वो डिजिट के ऊपर लिखने का, और क्या बोलने का? बार 1। चलो, मेक मी फील प्राउड, नेक्स्ट वन। बार 2, प्राउड ऑफ यू, नेक्स्ट वन। बार 5, नेक्स्ट वन। बार 3 ना, सोच के बोलना, नेक्स्ट वन। 3, वेरी गुड, बिकॉज 10:1 and 10:2, so can I say this 3? चलो, वेरी गुड, नेक्स्ट वन। वेरी गुड, आराम से। 6 ना, दोनों लेने का ना, ये दोनों लेने का, तो फिर ये भी तो दोनों लेने का, 6। चलो, नेक्स्ट वन, आराम से। 10:2 + 1 and 10:2 - 2 is 10:2 - 1. So is it bar 1? Yes. Next one, bar 3, proud of you. +4, very good. Bar 3. Scientific form का advantage समझ में आ रहा है? Very simple. When you express the number in scientific form, the things become very easy, right? Straight away, power of 10 becomes characteristic. तो ये बेटा पूरा का पूरा समझा। अभी मेंटिसा कैसे देखने का? Now you need the logbook. Open page number 6. आप अपने लॉगबुक का पेज नंबर 6 ओपन करो। बराबर, ऊपर लिखा हुआ है लोगैरिथम्स। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसकी स्प्लिट अप सुनो कैसे जा रही है। खाली पहले समझो कि लॉग टेबल डिजाइन कैसे किया है। ओके, ध्यान से सुनो। विल यू प्लीज कंफर्म ये पार्ट आ रहा है बेटा वीडियो में? आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनो। It starts from 2 digits. 10, 11, 12, 13, blah 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 blah. सामने वाले पेज पे 99 है। देखो, सामने वाले पेज पे लास्ट वाला रो 99 है। That is on page number 7. बराबर? ये एक पार्ट समझा? Now the second part. Check please. Is it a single digit? These are whole numbers, single digit whole numbers. Natural numbers means 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Whole numbers means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो बेटा ये कैसे जा रहा है? 0 1 2 blah blah blah, last one is 9. मैं जानबूझ के अलग अलग कलर से लिख रहा हूं। पहला वाला स्प्लिट अप क्या आया? 2 digits. दूसरा वाला स्प्लिट अप क्या आया? 1 digit. अब एक्सट्रीम राइट साइड देखो, डू यू सी मीन डिफरेंस? ऊपर लिखा हुआ है बेटा मीन डिफरेंस। And are they all natural numbers now? Yes. Single digit natural numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी मेंटिसा कैसे देखने का खाली ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को 3-4 मेंटिसा सॉल्व करके बताता हूं। Your number, ये जो साइंटिफिक नंबर आया ना, should be grouped as. ये एक ग्रुप बनेगा, ये दूसरा ग्रुप बनेगा, और ये तीसरा ग्रुप बनेगा। That means your first group is having 2 digits, A, B. Your second group is having 1 digit, C. Your third group is having 1 digit, D. That's all. बराबर? अब ध्यान से सुनो, मेरा नंबर क्या है इधर? 1457. 1457. तो you have to see 14 का रो, then you have to see 5 का कॉलम। बेटा ये 14 का रो और ये 5 का कॉलम जहां पे मिलता है वो 4 डिजिट का नंबर होगा, राइट? आई सजेस्ट इफ यू कैन यूज अ स्केल। रीजन, ये डिजिट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो बेटा थोड़ा भी रो कॉलम देखने में गड़बड़ हुआ ना तो यू विल मेक अ मिस्टेक। तो आपको क्या देखना है? 14 का रो देखना है, 5 का कॉलम देखना है। प्लीज कंफर्म विथ मी, 14 का रो एंड 5 का कॉलम, इज इट 1614? इज इट 1614? लेकिन बेटा ये मैंने क्या लिया? 14 का 5। अब ये 7 भी तो है ना, 7 भी तो है, तो वो 7 यहां से उठाने का मीन डिफरेंस कॉलम से, 7 यहां से उठाओ मीन डिफरेंस कॉलम से,
राइट चेक करो वो कितना है 14 का रो 5 का कॉलम एंड 7 का मिड 21 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड करेक्ट ये दोनों को ऐड कर दो सो इज इट 1635 इज इट 1635 ये बेटा आपका मेंटिस का हुआ ये आपका मेंटिस का हुआ व्हाट इज इट 1635 बराबर अभी मैंने ये 15 में से पहला वाला किया आप लोग रैंडमली मेरे लिए कोई भी और 2-3 सिलेक्ट करो वो मैं सॉल्व करता हूं और बाकी के आप लोग सॉल्व करो कौन सा वाला करूं 7th वाला ओके नेक्स्ट 9th एंड 12th बराबर 9th एंड 12th हाँ 12th इज अ गुड चॉइस बड़ा नंबर है एक सजेशन मैं दूं बेटा मैं 15th भी करता हूं क्योंकि उसमें एक ही डिजिट है अपने पास सिंगल डिजिट है बराबर ना और आपने कौन सा बोला 9th भी बोला ना या तो ये करूं ये वाला बेटर है आई एम डूइंग वन थिंग आई एम सिलेक्टिंग द टफ वंस फॉर मी राइट सो आई एम सिलेक्टिंग 7th one 12th one 13th one 15th one try to understand nicely and then you will solve the sums I am on 7th one इसका ग्रुप कैसे बनाओगे बेटा 34 बराबर ना पहला ग्रुप 2 डिजिट का 34 अभी दूसरे ग्रुप में 0 है और तीसरे ग्रुप में भी 0 है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 34 का रो देखना है खत्म 34 का रो देखना है 0 का कॉलम देखना है और इधर तो बेटा मीन डिफरेंस में 0 है ही नहीं सो 34 का रो देखो 0 का कॉलम देखो 34 का रो 0 का कॉलम 5315 इज इट 5315 तो बेटा ये आपका आंसर क्या हो गया 7th क्वेश्चन का 5315 एकदम बराबर से लिखना कॉलम आगे पीछे नहीं होना चाहिए स्टॉप राइटिंग ये पूरा टेबल बोर्ड पे रहेगा डोंट वरी आई विल गिव यू इनफ टाइम 4-5 मैं सॉल्व करता हूं बाकी के 10 वैसे भी आपको सॉल्व करना राइट और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर डीसीटी रखूंगा डेली क्लास टेस्ट सो यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड कि सर ने कैरेक्टरिस्टिक कैसे सिखाया था मेंटिसा कैसे सिखाया था आंसर कैसे ढूंढा था टुडे वी विल बी डूइंग इवन एंटी लॉग्स लॉग का उल्टा एंटी मींस उल्टा एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल डू साइन टेबल आल्सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12th 96 का 5 का 7 कैसे ग्रुप बनाओगे 96 का 5 का 7 96 का 5 देखो 96 का 5 देखो 96 का 5 is 9845 बराबर ना 9845 प्लस 5 का मीन डिफरेंस दैट इज 2 बराबर ना एक मिनट 96 का 5 96 का 5 इट इज 9845 बराबर है हाँ मीन डिफरेंस विल बी 7 देखना हाँ 3 करेक्ट मीन डिफरेंस इज 3 तो बेटा ये आंसर क्या हो गया आपका 9848 समझा सबको 9848 आई होप आई एम रीजनेबली स्लो चलो बेटा नेक्स्ट वाला क्या देखोगे आप बताओ मैं नहीं बोलूंगा 30 का 0 का 4 प्राउड ऑफ यू वेरी गुड 30 का 0 का 4 30 का 0 is 4771 का 4 is 6 4771 plus 6 4777 I hope I am reasonably slow अभी लास्ट वाला ट्रिकी है बेटा लास्ट वाला ट्रिकी है मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 1 ध्यान से सुनो कैन आई राइट 1 as 1.0 if required 1.00 if required 1.000 क्योंकि ये 0 का कोई मतलब नहीं है बराबर तो आई एम पुटिंग 000 फ्रॉम माय पॉकेट तो ये ग्रुप कैसे बनेगा 10 का 0 का 0 मतलब एकदम पहला वाला वैल्यू बेटा ये वाला करेक्ट 0000 करेक्ट 0000 राइट प्लीज लेट मी नो ये बात समझा
Characteristic is what? After you express your number in scientific form, compulsory, huh? After you express your number in scientific form, whatever is the power of 10 becomes characteristic. मेंटिसा कैसे देखने का बेटा? सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट उठाने का और बाद में उसका ग्रुप बनाने का. 4 डिजिट है तो अच्छी बात है, हाँ? 2 का ग्रुप, 1 का ग्रुप, 1 का ग्रुप. 3 डिजिट है तो चौथा वाला जीरो अपनी जेब से डाल दो. 2 डिजिट है तो ये दोनों को जीरो डाल दो. एक ही डिजिट है तो 3 जीरो डालो. यस और नो? योर आंसर इज सुपर सिंपल. आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा. आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा. मतलब आपका ये क्वेश्चन का आंसर हुआ 1.1635. Isn't it easy? Answer is chief minister. Answer is chief minister. चलो बेटा ये आंसर बोलो. बार 5.5315. नेक्स्ट वाला आंसर बोलो, ये वाला बार 1.9848. नेक्स्ट वाला आंसर बोलो बार 3.4777. नेक्स्ट वाला आंसर बोलो बार 3.0000. यू नो लास्ट वाले का मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ 10 का पावर इज पावर इटसेल्फ. What is log of 10 to the base 10? Proud of you. Very good. What is log of 10 square to the base 10? 2. Very good. याद करो बेटा, power becomes coefficient. Fantastic. What is 10 is to 3? 3. Very good. 10 is to minus 3? बार 3. पर वही आंसर आया अपना. ये 10 is to minus 3 है ना बेटा? तो what is log of 10 का पावर? What is log of 10 का पावर? Power itself. What is log of 10 का पावर? What is log of 10 is to 4? What is log of 10 is to 7? What is log of 10 is to minus 2? Minus 2 नहीं बोलने का, बार 2 बोल दो. Perfect. What is log of 10 is to 0? 0. Log of 10 is to 0 बोला है बेटा मैंने. Log of 1 नहीं बोला है. Right? Log of 10 is to 0 is 0 because log of 1 is 0. समझा? Sure. Log of 10 का power is power itself. इसको आप laws of logarithm में डाल सकते हो. आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था एकदम ऊपर वाला, उसमें लास्ट लॉ कौन सा था? ABCDE था ना? F लिखो. F देखो ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का. Log of 10 to the base 10 raised to m is m itself. Log of 10 raised to m to the base 10 is m itself. ये कैसे आया? Remember, power becomes coefficient. तो ये m मैंने आगे लिया होगा. Now what is log of 10 to the base 10? 1. m 1 जा. Answer is m. क्रॉस चेक समझा कैसे किया हम लोगों ने? ये लिखने के बाद मैं इसको वर्डिंग्स में लिखवा देता हूँ. ये लिखा आप लोगों ने? लिखो. Log of power of 10. Log of power of 10 is power itself. Log of power of 10. जल्दी मोबाइल बंद करो, किसका बज रहा है? Log of power of 10 is power itself. Right? ब्रैकेट में लिखो with respect to base 10. वो भी तो कंपलसरी है ना? इधर सोचो बेटा, with respect to base 2, 3 ऐसा कुछ आता तो आंसर गलत जाता. With respect to base 10. ठीक है? अभी ध्यान से सुनो. आपको ये 10 आंसर्स लिखने हैं और आपको ये 10 आंसर्स लिखने हैं. टोटल 20 आंसर्स लिखने हैं. I think if I give you 10 minutes should be enough. हाँ? एकदम ध्यान से देखना. कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा. And then I will read the answers for you. I will read the answers for you. Your time starts now. चलो बेटा शुरू करो. Your time starts now.
सके ना तो थोड़ा अलग कलर का पेन साथ में रखने का और हाइलाइटर साथ में रखने का. So when I am highlighting something like this techniques, you know, these arrows or something, you should do that. So when you are revising these things at home, और by chance suppose कुछ याद नहीं आ रहा है टाइम पे, तो you can do this. और ये बेटा एकदम बिगिनिंग के लेक्चर्स है, डोंट कॉम्प्रोमाइज. अगर आपको लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करना है घर पे जाके, टेल योर डैड और मॉम टू सेंड मी द मैसेज कि सर माय चाइल्ड वांट्स टू रिवाइज लेक्चर नंबर 2 because all my lectures are uploaded on YouTube, so I can send that link to you and you can revise. Okay, don't hesitate please. Your foundation should be very strong. Chalo, 10 minutes for you by the way. After 10 minutes I'll read out all the answers for you. In fact I'll fill up this table only for you. जश्न बोलो जश्न अभी we pause the video and restart, it is fine, it is risky. Stop नहीं होना चाहिए recording, pause होना चाहिए. हो जाएगा फिर restart होगा. पक्का ना? I trust you. Okay students, last 1 minute, huh? Last 1 minute. Hopefully you are done. By chance if you are not done, speed up please. Time out. मैंने अलार्म रखा था. ओके, हो गया बेटा? शुरू करूं? मैं आंसर्स लिख रहा हूं, आप वेरीफाई करो कि आपके आंसर्स राइट आए कि रॉन्ग आए, और अगर रॉन्ग आए आस्क मी, आई विल हेल्प. ओके, आई एम राइटिंग ऑल द आंसर्स, यू प्लीज कंफर्म ऑल द मेंटिसास फर्स्ट एंड देयरआफ्टर यू कंफर्म ऑल द फाइनल आंसर्स. ओके, माय टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं मेंटिसा लिख रहा हूं सबके साथ. Will you please confirm this column? Check करो बेटा. All correct? Anybody anything wrong? जिधर भी wrong है ना बेटा, पेंसिल से उसको highlight करने. Always develop that habit. Work on your mistakes. Whatever you are going wrong, you should recheck when you go home. कि why you had gone wrong. Anybody? How many of you got all correct? Very nice. One mistake. फाइन. किसमें मिस्टेक हुआ?
सिक्स्थ वाले में। ओके चलो कोई बात नहीं, 2 mistakes। Okay, maximum was 1 mistake. Good enough. चलो बेटा next one. Answer is very simple. You just have to club these two columns. So what will be this? What will be this? 2.3726, 3.7762, 0.6967, bar 1.1872, bar 2.7188, bar 5.5315, bar 3.5988, 3.0913। ये बेटा जीरो भी लिखने का, खाली 913 नहीं लिखने का, क्योंकि आप लॉगबुक में जब भी मेंटिसा दिखते हो, मेंटिसा तो हमेशा 4 डिजिट में लिखा होता है। मतलब सपोज कोई मेंटिसा 34 आया ना, तो दे विल नॉट राइट 34, दे विल राइट 0034। टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, दिस जीरो हैज अ सेंस। ओके, this will be bar 3.2872, this will be 6.1682, these are respectively bar 1.9848 and bar 3.4777, this is 4.6387। yes बेटा, श्योर? ऑब्वियसली आप जो मेंटिसा में रॉन्ग गए थे, ऑब्वियसली उसका आंसर भी रॉन्ग आया होगा, राइट? बिकॉज योर मेंटिसा वाज रॉन्ग। So, can you please increase the temperature? Put it and बंद कर दो। When you need it, just let me know. Right? So let us move on to the next exercise, and your next exercise is how to find out antilog. How to find out antilog. Page number 2. अब वहां पे बेटा एक सैंपल प्रॉब्लम दी है। एंटीलॉग मतलब लॉग का बिल्कुल उल्टा करने। एंटीलॉग मतलब लॉग का बिल्कुल उल्टा करने का। हम लोग लॉग में कैसे जाते थे? पहले कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते थे, फिर मेंटिसा को देखते थे। अभी इसमें पहले मेंटिसा को देखने का, फिर कैरेक्टरिस्टिक पे आने का। एंड व्हाट विल कैरेक्टरिस्टिक बिकम? पावर ऑफ 10। व्हाट विल कैरेक्टरिस्टिक बिकम? पावर ऑफ 10। कुछ भी मत देखो, सिर्फ बेटा मेरा बोर्ड वर्क देखो, सिर्फ मेरा बोर्ड वर्क देखो। मैं इधर दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट एंटीलॉग ऑफ। AL का मतलब होता है एंटीलॉग ऑफ। मैं एक नंबर लिख रहा हूं इधर 3.5388। अब इसका ग्रुपिज्म कैसे करने का सुनो ध्यान से। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला देखने का, बाद वाला। सो 53 का एक ग्रुप होगा, 8 का दूसरा ग्रुप होगा, और ये 8 का तीसरा ग्रुप होगा। नाउ आई वांट यू टू बी ऑन पेज नंबर 8 ऑफ योर लॉगबुक। 8 इसकी पैटर्न थोड़ी अलग है। डू यू सी एट द टॉप एंटी लॉगरिथम्स? एंटी लॉगरिथम्स। अभी आपका लॉग टेबल कहां से शुरू होता था बेटा? 10 से, और कहां पे खत्म होता था? 99 पे। लेकिन आपका एंटी लॉग देखो 10 से शुरू नहीं हो रहा है, 0.00 से शुरू हो रहा है, 0.00, और कहां पे खत्म हो रहा है? 0.99, राइट? बाकी आपका पहला जो कॉलम है स्टाइल से 0 से लेके 9 तक, और आपका मिन डिफरेंस का भी स्टाइल से 1 से लेके 9 तक। Now what I want you to do is I want you to compare page 6 and 7 with page 8 and 9. Page 6 and 7 they were logarithms. Page 8 and 9 are anti-logarithms. Page 6, 7 पे बेटा आपका टेबल कहां से शुरू होता है? 10 से। कहां पे खत्म होता है? 99 से। अच्छा, फिर पहला वाला रो कौन सा आया? 0 से लेके 9 तक, और मीन डिफरेंस कौन सा आया? 1 से 9। लेकिन एंटीलॉग में क्या फर्क है? Your antilog is not starting from 0.10. No, it is starting from 0.00. And it is ending where? 0.9. 99 तक जाता है। बाकी सब पैटर्न से। अभी इसमें क्या करने का? ध्यान से सुनो बेटा। अभी बाकी इसमें ना 2-3 खोपड़ी वाले सम्स मैं करके देता हूं आपको, बाकी के आप लोग करोगे। खोपड़ी मतलब थोड़ा ट्रिकी है, यू हैव टू बी अलर्ट। अभी इसमें ग्रुपिंग कैसे करने का? 0.53 मतलब आपके पास एंटीलॉग टेबल में, यू आर ऑन पेज नंबर 8 एवरीवन। पेज नंबर 8 में आपका लास्ट वाला कहां तक जा रहा है? 0.49, मतलब 0.53 सामने के बीच पे है। तो आप लोगों को 0.53 का, दिस इज 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट वन इज 0.99। आपको देखना है 0.53 का रो, 8 का कॉलम,
8 का कॉलम एंड 8 का मीन डिफरेंस, 8 का मीन डिफरेंस, राइट। सेम स्टाइल बेटा, एकदम सेम स्टाइल, ये दोनों को ऐड करने का। 53 का रो देखो और 8 का कॉलम देखो। 53 का रो एंड 8 का कॉलम, इज इट 3 4 5 1 बेटा? ये नंबर आपको 3 4 5 1 दिखा, राइट। और अभी 8 का मीन डिफरेंस वही लाइन में 6 इज द मीन डिफरेंस, बराबर। सो व्हाट इज द टोटल? 3 4 5 7। रुक जाओ, ये बेटा 3 4 5 7 आया। व्हाट डिड यू टेक केयर ऑफ? कैरेक्टरिस्टिक कि मेंटिसा कि बोथ? मेंटिसा ना, ओनली मेंटिसा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, कुछ नहीं करना है बेटा। आपको जो आंसर आया ना, इसको आप कंपल्सरीली पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट, दैट मींस इट बिकम साइंटिफिक फॉर्म। बाकी कौन बचा था जो आपने नहीं लिया था? ये बंदा बचा था। दिस बिकम्स पावर ऑफ 10, खत्म, ये आपका आंसर हो गया। समझा कि वापिस बोलो? आपने जो एंटी लॉग देखा वो क्या आया बताओ? आपने जो एंटी लॉग देखा वो क्या आया बेटा? 3, अच्छा ये मैं तो इसका लिख रहा हूं, सॉरी, ये तो मैंने देखा भी नहीं अभी तक। 3 4 5 7 आया आपका एंटी लॉग। व्हाट यू शुड डू? पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट एंड द कैरेक्टरिस्टिक शुड बिकम पावर ऑफ 10। द कैरेक्टरिस्टिक शुड बिकम पावर ऑफ 10, राइट। अभी मैं आपको 2-3 सम्स करके देता हूं। ये मैंने खोपड़ी वाले मार्क किए, राइट। ये वाले मैं करता हूं 1 2 3। This will be the scientific form, right? ऑलवेज। अब वो मैंने अलग प्रॉब्लम लिया था ना बेटा, इसलिए मैं इधर लिख नहीं सकता। अब आप लोग अपने पेज नंबर 2 पे आ जाओ, राइट। लॉग बुक में यू शुड बी ऑन पेज नंबर 8 एंड एक्सरसाइज वाले पेज में यू शुड बी ऑन पेज नंबर 2। डू यू सी वन टेबल देयर? वो सेम टेबल बेटा मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया, यस और नो? दैट मींस यू हैव गॉट 10 क्वेश्चंस अगेन। आई एम सॉल्विंग थर्ड वन फॉर यू, फिफ्थ वन फॉर यू, 8th वन फॉर यू एंड 10th वन फॉर यू। शुरू करूं बेटा? हो सके तो हाइलाइटर साथ में रखना, या तो रेड पेन या कुछ, सो दैट व्हेन आई एम मार्किंग समथिंग यू विल कम टू नो कि सर कौन सा वाला आंसर देख रहा है। थर्ड वाला देखो, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, आई गिव यू इनफ टाइम। इसको क्या देखने का बेटा? 0 0 का 4 का 2, क्या देखने का? 0 0 का 4 का 2। गलती से लॉग टेबल मत देखना, एक्सरसाइज चेंज हुआ है अभी। नाउ यू हैव टू सी एंटी लॉग टेबल। चलो एंटी लॉग टेबल पे बेटा 0 0 का 4 देखो, 1 0 0 9, बराबर। और बाद में उसका 2 देखो, 2 0 इज माय फाइनल आंसर 1 0 0 9, 1 0 0 9, बराबर। सॉरी 1 0 0 9। ये तो मैंने सिर्फ एंटी लॉग देखा। अभी मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ये जो साइंटिफिक फॉर्म लिखा है ना उधर, उसी के ऊपर लिख लो कि दिस इटसेल्फ इज योर आंसर, दिस इटसेल्फ इज योर आंसर। चलो बेटा आंसर क्या आएगा मेरा? ये 1009 में रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद में। इधर बाकी कौन बच गया था? 1। बाकी कौन बच गया था? 1। सो व्हाट इट शुड बिकम? 10⁻1। ये 1 को मैंने स्टार मार्क किया था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो 1 किधर आया। समझा बेटा? श्योर, एकदम पक्का। आप लोग ट्राई करो। हम लोग अभी 5th पे है, क्या देखोगे आप? 25 का 0 का 2, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। चल 25 का 0 का 2, 1778 प्लस 1, 1779, 1779। ये तो मैंने सिर्फ एंटी लॉग ढूंढा। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 1.779 इंटू 10⁻³ बराबर। मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको जरूरत है मेरी, नहीं करता हूं, ये आप लोग करो, बराबर। ये लास्ट वाला करता हूं। अभी ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास 2 ही डिजिट्स है, 34। कैन आई पुट 2 zeros फ्रॉम माई पॉकेट? बिकॉज मुझे ग्रुप बनाना है। इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते मालूम है? ये मैंने खोपड़ी क्यों मार्क किया है? स्टूडेंट्स ग्रुप बनाते 12 का 3 का 4। अगर मैं 12 का 3 का 4 का ग्रुप बनाता तो मैं लॉग देख रहा था ना,
राइट? एंटी लॉग में आपको डेसिमल पॉइंट के बाद ग्रुप बनाना होता है, यस और नो? सो इज इट 34 का 0 मतलब आपको सिर्फ 0.34 देखना है, 0.34. इज इट 2188? इज इट 2188? तो बेटा मेरा आंसर क्या हो गया? 2.188 into 10⁻²+12, बिकॉज ये 12 था तो 12 इसका पावर बनेगा. लॉजिक समझा बेटा? मैंने 10 में से 3 सॉल्व किया, राइट? आप बाकी के 7 सॉल्व करोगे. आई एम गिविंग यू आई थिंक 7 minutes. कैन वी पॉज द वीडियो प्लीज? So students, how to see anti-log? I have written all the anti-logs over here. Then I have written the scientific form. That means if you see 2749, it is repeat. 1673, it is repeat throughout. Then what to do? Put the decimal point after first digit. और जो बच गया था, right? जो बच गया था, that becomes power of 10. That becomes power of 10. Logic समझा बेटा? Have you cross-checked all 10 answers? Yes. Because now I am taking you on to the next exercise. एक exercise हुआ अपना logarithms, page number 6 and 7 of your logbook. दूसरा exercise हुआ अपना anti-logarithms, page number 8 and 9 of your logbook. Now we are on natural science. Natural science. Then it will be natural cosines and then it will be natural tangents. अभी ध्यान से सुनो बेटा, जो स्टाइल में natural sine देखते हैं सेम स्टाइल में नेचुरल टेंजेंट्स देखते हैं. कॉस में थोड़ा सा फर्क है. क्या फर्क है? आई विल लेट यू नो, राइट? जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक प्लीज कीप योर नोट्स असाइड. जस्ट टोटल फोकस ऑन हाउ टू फाइंड आउट साइन ऑफ एन एंगल. हाउ टू फाइंड आउट साइन ऑफ एन एंगल, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट साइन ऑफ एन एंगल, देन कॉस ऑफ एन एंगल एंड tan ऑफ एन एंगल are also very simple. Now here is the time for us to recall. Last time याद है मैंने एक टेबल सिखाया था, particularly IGCSE स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते. वो टेबल बेटा मैं वापस सिखा रहा हूँ, राइट? योर लॉगबुक प्लीज. कहीं पे तो वो टेबल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. विल यू प्लीज हेल्प मी विद द पेज नंबर? सॉरी, 5. यस. ओके, ये टेबल बेटा मैं वापस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो. बिकॉज देयर आफ्टर ये तो एकदम स्टैंडर्ड एंगल्स थे, राउंड फिगर्स थे, राइट? अभी यू आर गोइंग टू डील विथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. फर्दर every degree is divided into 60 minutes and then every minute is divided into 60 seconds. Means you are going to see minute most angles. Okay, पहले मैं ये टेबल लिख रहा हूं, simple trigonometric table, and thereafter we will try to understand how to see sine of an angle. क्या सिखाया था मैंने? Write down first 5 whole numbers, 0, 1, 2, 3, 4. Thereafter your next step is divide by 4 throughout. 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. Thereafter you take the root, positive root. So 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4 का root and का root. That means your first answer is 0, your second answer is 1 by 2, your third answer is 1 by root 2, your fourth answer is root 3 by 2 and your fifth answer is 1. This becomes sine of an angle, sine of theta, where theta is angle, right? Over here this is 0 degree, this is 30 degree, this is 45 degree, this is 60 degree and this is 90 degree. IGCSE स्टूडेंट्स समझा बेटा? अभी ध्यान से सुनो, अभी सब लोग ध्यान से सुनो, बिकॉज ये तो बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है, ये बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है. दिस कैन बी रिटन एज 0.0000. दिस कैन बी रिटन एज 0.5000. 1 by root 2 का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो. आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज root 2?
क्या वैल्यू है बेटा उसका? प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। √2 का वैल्यू आपने हमेशा याद रखना है। √2 का वैल्यू इज 1.414। √3 का वैल्यू आप लोगों को हमेशा याद रखना है 1.732। √5 का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है 2.236 एंड फाइनली √10 का वैल्यू याद रखना है 3.162। Right? When I finish explaining this, you are going to add this in your trigonometric table, या तो your fair notes, या तो मैंने जो ये literature दिया है उधर कहीं पे भी ऐड करना, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। Now check, 1/√2 मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो, because now none of you know this। 1/√2 can I multiply and divide by √2? इसको बोलते हैं rationalization। तो आपका न्यूमरेटर हो गया बेटा √2 और आपका डिनोमिनेटर हो गया √4, मतलब 2, बराबर। न्यूमरेटर इज 1.414 सोचो एंड डिनोमिनेटर इज 2। इसका मतलब योर आंसर इज 0.707070 जाते ही रहेगा एंड देयरफॉर वी राउंड इट ऑफ टू 0.7071। तो बेटा 1/√2 is the fractional way of writing it, something upon something। और अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं ये पूरा मैंने सॉल्व करके बताया कि बेटा ये कैसे आया है ना, ये मैंने सॉल्व करके बताया, ये मैंने 1/√2 से शुरू किया था। It is this, it is this, it is this and therefore it is this। 1/√2 is 0.7071। So I am writing that value here, I am writing that value here। अभी √3/2 क्या आएगा, कॉमन सेंस अप्लाई करो, 0.8 इसका हाफ, इसका हाफ, बराबर ना, √3 मेरे पास है। सो 0.2 8 जा 16, 1 3 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 0। अभी ये जो मैंने लिखा ना, ये आप लोगों को लॉग बुक में दिखेगा। आर यू ऑन योर लॉग बुक, पेज नंबर 6 7 8 9? आर यू ऑन पेज नंबर 10? पेज नंबर 10, टाइटल देखो क्या लिखा है, नेचुरल साइंस। अभी ये तो मैंने एकदम राउंड फिगर एंगल्स लिखे हुए, राइट? चेक करो, सबसे पहला एंगल आपका, आपके एंगल्स कहां से शुरू हो रहे हैं? इज इट 0 डिग्री? सामने के पेज पे लास्ट कौन सा खत्म हो रहा है? 89 डिग्री। सामने के पेज पे बेटा, बिल्कुल सामने के, टर्न नहीं करना है, सामने के पेज पे 89 डिग्री, बराबर। साइन 0 देखो, मतलब सबसे पहला रो और सबसे पहला कॉलम, ये ऐसे लिखा होगा ना इधर, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ब्ला ब्ला ब्ला, द लास्ट वन इज 89 डिग्री। उसके बाद का मुझे अभी समझाना बाकी है। आपको सिर्फ ये देखना है, व्हाट इज साइन ऑफ 0 डिग्री, व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज साइन ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। बस आपको सिर्फ ये देखना है। आपको देखो फर्स्ट आंसर मिलेगा 0.0000। इज इट दिस? आपको साइन 30 देखो मिलेगा 0.5000। You know what does this mean? 1/2 and 0.5 mean the same। IGCSE students, जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो तो आपको स्क्रीन पे ये वैल्यूज दिख के आते हैं, बराबर। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 45 डिग्री देखो बेटा, इज इट 0.70? 60 डिग्री देखो, बराबर। हाँ, अभी ये तो एकदम स्टैंडर्ड एंगल्स थे, राउंड फिगर्स थे। अब अगर उन्होंने एंगल्स कॉम्प्लिकेट किया तो फिर क्या करने का? नाउ स्टार्ट्स द न्यू थिंग। हाँ, एकदम ध्यान से बेटा, एक बार साइन टेबल समझ में आ गया ना आपको, ट्रस्ट मी, cos and tan are very simple। cos and tan are very very simple। now listen to my argument very carefully। ये मेरा साइन टेबल हो गया। कॉस टेबल कैसे लिखने का लास्ट टाइम सिखाया था मैंने। राइट साइन थीटा इन रिवर्स ऑर्डर, बराबर। ये आपने कैसे लिखा था? 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। ऑर्डर उल्टा कर रहा हूं मैं, ऑर्डर उल्टा कर रहा हूं। तो ये कैसे लिखूंगा? हाउ विल आई राइट cos थीटा? हाफ विल आई राइट cos थीटा? cos थीटा इज गोइंग टू बी, उल्टा शुरू करने का, 1 √3/2, 1/√2 as it is, 1/2 and 0। yes or no? 10 में क्या करने का? 10 में पपलू एकदम इजी, 10 is पपलू। tan of theta
is sin of theta upon cos of theta. So this is 0 upon 1, 0. 1 by 2 upon root 3 by 2. 1 upon root 3. Right? 1 by root 2 upon 1 by root 2. 1. Root 3 by 2 upon 1 by 2. 2 cancel. Root 3. 1 upon 0. Not defined. Meaningless. Stupid. Murder of mathematics. Something upon 0 is always wrong. 0 upon anything is always 0. Something upon 0 is not defined. It is murder of mathematics. Infinity we call this as. ये सबको समझा बेटा? ये टेबल सबको समझा? Because now I am going to split this in more details. Now I am going to split this in more details. ये जो मैंने इधर लिखा ना, that was theta. और जो मैंने ये साइड पे लिखा, ये these are trigonometric ratios. So before I go for more details, will you please check your logbook page number 5, जहां पे ये टेबल था, बराबर? मैं बाकी ये 3 नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना? What do you mean by cosec? 1 by sin. What do you mean by sec? 1 upon cos. And what do you mean by cot? 1 by tan. बराबर? Sure. अभी मैंने जो वैल्यूज फ्रैक्शन के नीचे लिखे हुए डेसिमल पॉइंट, आप साइन वाला टेबल देखो, साइन ये वाला देखो बेटा, जहां पे हाफ लिखा है ना, उसके नीचे आप 0.5000 लिखो, जहां पे 1 by root 2 लिखा है वहां पे ये लिखो, फिर ये लिखो, और बाद में ये 1.0000। मतलब मैंने सेम वैल्यूज लिखे हैं, ओनली थिंग इज इन प्लेस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज आई हैव रिटर्न डेसिमल वैल्यूज। In place of fractional values, I have written decimal values. IGCSE students, बेटा ये टेक्निक समझा? What is the technique? Write down first 5 whole numbers, 0, 1, 2, 3, 4. Divide by 4, 4, 4, 4, 4. Take the positive square root. That is the sine table. So now I am writing how to find out sine of an angle, cos of an angle and tan of an angle. अभी बेटा बुक्स एकदम बंद, एकदम ध्यान से सुनो खाली। ये आपका प्रोटेक्टर होता था स्कूल में, बराबर? ये आपका प्रोटेक्टर होता था, ये आपका 0 180 लाइन होता था, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री होता था। अगर आप यहाँ 0 से शुरू करते हो तो यहाँ 180 तक जाते हो और ये 90 डिग्री आता है। उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज you may be having habit of drawing circle this way, and some of them are having the habit of drawing circle this way. You may be righty, you may be lefty also. That's why they give 0 here also and they give 180 here also. तो आप ऐसे भी जा सकते हो और आप ऐसे भी जा सकते हो। Suppose मैं ऐसे जा रहा हूँ, right? Then can I say this is divided into 3 equal parts? This will be 30 degree, this will be 60 degree, this will be 90, this is 120 degree, this is 150 degree. और अगर उल्टा लिखा तो 150 जगह पे 30 लिखने का, 0 30, इसकी जगह पे 60, ये तो 90 ही है, this is 120, this is 150 and this is 180। समझा? मतलब अगर मुझे 10 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करने का? 10 डिग्री का एंगल बनाना है सपोज यहाँ पे, तो बेटा ये 10 डिग्री हो गया, ये, am I right? ये 30 डिग्री हो गया, am I right? You know how to draw the angle. Now comes the details. Every degree is divided into 60 equal parts and each part is known as a minute. Single dash का मतलब होता है मिनट। जैसे आप लोग आवर एंड को डिवाइड करते हो, 1 hour is 60 minutes, वैसे एंगल में 1 degree is 60 minutes। बाद में वो मिनट को भी आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ईच पार्ट इज अ सेकंड। सेम आप 1 आवर को 60 मिनट्स बोलते हो और 60 मिनट्स को 3600 सेकंड्स बोलते हो। वो टाइम की काउंटिंग थी, ये एंगल की काउंटिंग है। लॉजिक से 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड ईच मिनट इज 60 सेकंड, दैट मींस इट इज 3600 सेकंड्स। इसका मतलब होता है बेटा डिग्री, सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट्स एंड डबल डैश का मतलब होता है सेकंड्स। प्लीज लेट मी नो, ये पार्ट समझा आपको? Therefore, अभी आप ये पार्ट देखोगे ना, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर लॉग बुक नाउ, 6 7 8 9 पेज नंबर 10।
पेज नंबर 10 के टॉप पे लिखा है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस लिखा है। अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, वो टेबल कैसे बनाया है उन्होंने, एकदम ध्यान से सुनो एवरीबॉडी हियर। 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। अभी जो मैं लिख रहा हूं ना, ये उन्होंने नहीं लिखा होगा, आप लोगों को ये लिखना है। व्हेन आई फिनिश, इफ 1 डिग्री 60 मिनट्स, कैन आई से 1/10 डिग्री should be 60/10 minutes। इसका मतलब 0.1 डिग्री should be 6 minutes। ये समझा बेटा? सो अभी आप इसके कॉलम्स देखोगे ना, तो देखो कैसे क्या, 0.0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री। Likewise, the last one is 0.9 degree. Are you checking this? लास्ट वाला बेटा 0.9 डिग्री दिखा। अब ध्यान से देखो, उसके ऊपर भी कुछ लिखा है। 0.1 डिग्री के ऊपर 6 मिनट्स लिखा होगा, 0.2 के ऊपर 12 मिनट्स लिखा होगा, 18 मिनट्स लिखा होगा। लाइकवाइज 0.9 पे 54 मिनट्स लिखा होगा। कॉमन सेंस, इफ 0.1 is 6 degree, that means 0.2 has to be double of 6 degree. Yes or double of 6, triple of 6, मतलब 6 का टेबल बोल रहा है मुझे। 0.0 के ऊपर देखो कुछ नहीं लिखा होगा, 0 मिनट्स लिखा होगा। 0.1 के ऊपर 6, 0.2 के ऊपर 12, 0.3 के ऊपर 18, 0.9 के ऊपर 54, बराबर। अभी मान लो मुझे 30 डिग्री और 12 मिनट्स वाला एंगल देखना है, तो मुझे 30 डिग्री का रो देखना चाहिए, 12 मिनट्स का कॉलम देखना चाहिए। समझा? बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है? 0.50। वेरी गुड। अगर मुझे 30 डिग्री 18 मिनट्स देखना है, नेक्स्ट वाला देखने का, बराबर। अभी 12 और 18 के बीच में 5 लोग आके गए, 13, 14, 15, 16, 17, राइट। व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री? मैं 3 वैल्यूज पूछता हूं, सोच के बोलना बेटा। व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री? इज इट 0.5000? अभी मैंने आपको पूछा व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री 12 मिनट्स। अब एकदम ध्यान से सुनो और एक बात, क्या कर रहे हैं? चाटा मार के निकाल दूंगा मैं मैच में। सीरियसली, आई एम रिकॉर्डेड, इफ यू वांट ना मेक इट वायरल। You have chosen this batch, I did not force you. So if you can't hold your sleep or something, better leave science. Sine of 30 degree is half. Sine of 30 degree 12, मतलब आपको 30 डिग्री का रो देखना है और 12 का कॉलम देखना है। तो क्या आंसर आया वो? 0.5030। अब ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। साइन ऑफ 30 डिग्री 14 मिनट्स। इसका मतलब यह हुआ, इधर मेरे पास 12 के बाद डायरेक्ट 18 का जंप है, तो मैं 14 मिनट्स कहां से लाऊं? लास्ट वाला कॉलम देखो, उसमें 1 2 3 4 5 होगा, सिर्फ 5 तक होगा। यू नो व्हाई? 12 और 18 के मिनट्स बीच में 5 मिनट्स मिस हुआ। 13 मिस हुआ, 14 मिस हुआ, 15 मिस हुआ, 16 मिस हुआ, 17 मिस हुआ, फिर 18 तो है ना मेरे पास। तो 30 डिग्री 14 मिनट्स कैसे देखने का? 30 डिग्री का रो, 12 मिनट्स का कॉलम और 2 मिनट्स का मीन डिफरेंस। कितना मिनट्स है बेटा? यहां पे आपको 2 मिनट्स का मीन डिफरेंस देखना है। 2 मिनट्स का कितना है? 5। यह आंसर आपका कितना आया था? 5030। तो अभी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0.5035। यस और नो? व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री? 0.5000। What is sine of 30 degree? 12 minutes. 6 minutes, 12 minutes, 18 minutes are some exact multiples of 6. तो मुझे उसमें मीन डिफरेंस देखना ही नहीं है। अगर कुछ कम पड़ गया तो वो कहां से उठाने का? मीन डिफरेंस से। अगर बेटा मैं आपको 30 डिग्री 17 मिनट्स पूछता तो आप क्या देखते? 30 12 प्लस 5। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर आपने 12 मिनट्स और 5 मिनट्स ऐड किया, मैं 18 मिनट्स माइनस 1 मिनट ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकते हो बेटा, सेम आंसर आएगा। एक काम करो, आप लोग साइन ऑफ 30 डिग्री 14 मिनट्स दो तरीके से लिखो। 30 डिग्री 12 मिनट्स एंड 2 मिनट्स लिखो, या तो फिर 30 डिग्री
18 मिनट्स माइनस 4 मिनट। देखो ये दोनों का मीनिंग सेम हुआ ना, तो मेरे आंसर्स भी सेम आने चाहिए। चेक करो, अगर मिनट्स ऐड करते हो तो मीन डिफरेंस ऐड करना, और अगर मिनट्स सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना। चलो आना ही चाहिए बेटा, समझा? आना ही चाहिए। अब इसका लास्ट पार्ट सुनो, बिकॉज अभी मैं जो जो लिख रहा हूं ना ये आप लोग कॉपी करोगे अपने फेयर बुक में, जैसे कि ये और ये और ये, बराबर? अभी मैं लास्ट पार्ट लिख रहा हूं, लास्ट पार्ट ध्यान से सुनो। आपका ये टेबल सिर्फ 0 से शुरू होकर 90 पे खत्म हो रहा है, सो इज इट ओनली फॉर एक्यूट एंगल्स? यहां तक, आगे तो मैं गया ही नहीं ना, आगे तो मैं गया ही नहीं, है ना? मैंने साइन ऑफ 120 डिग्री पूछा क्या, साइन ऑफ 135 पूछा क्या, पूछा ही नहीं, वो बाद में आएगा मैथ्स में। लॉग टेबल में सिर्फ 0 to 90 तक होता है, यस सर? तो जहां पे नेचुरल साइंस लिखा है ना, ये पार्ट वहां पे लिखना है जो अभी मैं लिख रहा हूं, पहले सुन लो। इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, डू यू एग्री विथ मी? साइन ऑफ थीटा शुड लाई बिटवीन साइन ऑफ 0 डिग्री एंड साइन ऑफ 90 डिग्री। मतलब मैं थ्रू आउट साइन ले रहा हूं, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा शुड लाई बिटवीन साइन ऑफ 0 इज 0 एंड साइन ऑफ 90 इज 1। इसका मतलब ये जो पूरे 2 पेजेस है ना आपके, वो हर एक आंसर 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, मींस इट इज ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग 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 कम। आपका ये आंसर 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इज इट वेरी वेरी क्लियर? एकदम पक्का, श्योर? अभी एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूं, पेज टर्न करो, नेचुरल कोसाइंस। उसमें मीन डिफरेंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहा है, वेरी गुड। कैन यू टेल मी कि व्हाई वहां पे मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता होगा? बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, एज थीटा इंक्रीजेस, कैन आई से साइन ऑफ थीटा इंक्रीजेस, therefore we should add the mean difference because they synchronize with each other। ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, therefore we should add mean difference। लेकिन बेटा मैं cos के टेबल में क्या लिखूंगा? as theta increases। चेक करो, आपका cos 0 1 है और आपका cos 90 0 आएगा, बराबर ना? so as theta increases cos of theta should decrease and therefore we should subtract the mean difference। बहुत सारी बातें वो लोग लिखते ही नहीं है बेटा, वहां पे सिर्फ subtract लिख के छोड़ दिया, but as a student you should know ना कि सर साइन में ऐड किया था तो इधर subtract क्यों, right? so you should subtract the mean difference। अभी मैं जो 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 बोलता हूं वो स्टाइल में लिखने का। Are you back to natural science? पेज नंबर 8 एकदम टॉप पे लिखो बेटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, therefore sin theta should lie between sin 0 and sin 90, theta lies between 0 and 90, so sin theta should lie between sin 0 and sin 90 and therefore sin theta should lie between 0 and 1। ये सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए है, हाँ माइंड यू, मैंने 120 डिग्री 135 डिग्री ये सब तो बोला ही नहीं है, सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए, 0 से ज्यादा 90 से कम, बराबर? उतना पार्ट उधर एडजस्ट हुआ आपका। अभी अगर उधर जगह है तो ठीक है, नहीं तो आप सामने वाले पेज पे लिख सकते हो क्योंकि वो भी नेचुरल साइंस का ही टेबल है। इज इट पेज नंबर 6 7 8 9 10 11? पेज नंबर 11 पे ये पार्ट लिखो, सिर्फ ये पार्ट। ये आप लोगों को लिखना था पेज नंबर 10 पे लॉग बुक पे, ये आपको लिखना था पेज नंबर 10 पे, ये आप लिख रहे हो पेज नंबर 11 पे। सर अगर जगह है तो लिख सकते हैं। सॉरी बेटा, अगर जगह है वहाँ पे नीचे लिख लो, हाँ जगह है तो उधर ही लिखो, नो प्रॉब्लम। इट इज योर बुक, द वे यू आर कंफर्टेबल यू राइट, इट इज योर बुक। ये साइन के लिए लिखा, हाँ कॉस का भी कॉस का लिखवा रहा हूं, पहले सुन लो। ये साइन का लिखा बेटा, अभी कॉस में क्या वेरिएशन आएगा सोचो, कॉस में क्या वेरिएशन आएगा, ध्यान से सुनो।
if theta lies between 0 and 90, cos theta should lie between cos 0 and cos 90. इसका मतलब cos theta should be this and this, right? अब ये मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा बिकॉज ये 1 से तो कम ही है ना, तो ये मुझे ऐसा लिखना चाहिए. समझा बेटा? तो आप लोग पेज नंबर 12 पे ये लिखोगे, पेज नंबर 12 पे ये लिखोगे, लॉगबुक के पेज नंबर 12 पे. एंड फाइनली लॉगबुक के पेज नंबर 13 पे ये लिखोगे. ओके? अभी आज का लास्ट पार्ट, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये इतना पार्ट कॉपी करना है. किधर कॉपी करोगे? फेयर बुक में, या तो फिर आप इधर भी कॉपी कर सकते हो. यू कैन कॉपी दिस हियर. आई थिंक आई सजेस्ट यू शुड कॉपी दिस हियर. आर यू ऑन पेज नंबर 2 ऑफ द लिटरेचर विच इज गिवन टू यू? इधर बेटा आपके पास इनफ ब्लैंक स्पेस है ना, आपके पास इधर इनफ ब्लैंक स्पेस है. उधर ये पार्ट कॉपी करो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये पूरा आई एम वेटिंग फॉर यू. इसमें जो भी पार्ट ऐसा लगता है ना कि ये मेरे लिए नया है, लाइफ में कभी सुना नहीं है, और जैसे प्रोट्रैक्टर का डायग्राम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, वॉट एवर यू फील यू वांट टू कॉपी इन योर नोटबुक, प्लीज डू दैट. डोंट हेजिटेट. यू कांट जस्ट काउंट ऑन योर मेमोरी. हाँ, अब ये सब याद रहेगा, 20 दिन के बाद शायद याद नहीं रहेगा, तो कहीं पे लिखा होगा ना, इट विल हेल्प यू. ये जो डिग्री और मिनट और सेकंड का कन्वर्जन है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द टेबल्स. साइन ऑल्सो, कॉस ऑल्सो, टेन ऑल्सो, बिकॉज बेसिकली इट इज फॉर थीटा, बेसिकली इट इज फॉर एंगल. ये इतना पार्ट आपको कॉपी करना था. आप लोगों को समझा साइन टेबल कैसे दिखते हैं? हाँ, ओके. पेज नंबर 4 पे आ जाओ. आज का लास्ट एक्सरसाइज, आज के लास्ट 4 क्वेश्चन. हाँ, कॉपी करो बाद में आराम से, नो प्रॉब्लम. आपके एक्सरसाइज के जो अभी ये लिटरेचर दिया ना मैंने, ये वाला, इसमें बेटा पेज नंबर 4 पे आ जाओ आप लोग. पेज नंबर 4. डू यू सी एक्सरसाइज नंबर 10? Do you see 10 questions in that? Some of them are sine, some of them are cos, and some of them are tan. मैंने आज से साइन टेबल सिखाया है, तो I want you to solve these questions. ध्यान से सुनो बेटा. पेज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर्स 1, 5, 7 and 10, because they are sine of some angle. 4 questions. अभी करो बेटा मेरे सामने. 2 मिनट, मैं 4 मिनट भी नहीं दे रहा हूँ. नोटबुक पर करना है तो उधर ही करो ना, बाजू में जगह है ना. 1 मिनट, इधर ब्लैंक स्पेस है ना, उधर ही करो बेटा. ये लिखा है मैंने. पेज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 10, क्वेश्चंस 1, 5, 7 and 10. ये लिखा है बेटा इधर. 1, 5, 7 and 10. Only 2 minutes for you. I am sure you will be able to
Do this in 1 minute. Are my expectations high? You can do it, right? ये सारे आंसर्स बेटा 0 से ज्यादा आएंगे और 1 से कम आएंगे. Means you should write 0 point something 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 something. सॉरी, 69 minutes. हाँ ट्रिकी है, मस्त है. 69 डिग्री 69 मिनट्स है ना बेटा वो. तो कैन यू राइट दिस एज 69 डिग्री 60 मिनट्स प्लस 9 मिनट्स. तो वो जो 60 मिनट्स है उसको 1 डिग्री बना दो. 1 मिनट. 10th वाला 69 डिग्री 69 मिनट्स है. ट्रिकी क्वेश्चन. तो कैन आई राइट दिस एज 70 डिग्री 9 मिनट्स. नहीं समझा? ये देखना 69 डिग्री 69 मिनट्स. कैन आई राइट दिस एज 69 डिग्री 60 मिनट्स एंड 9 मिनट्स. तो बेटा ये 1 डिग्री हो गया ना. सो इज इट 69 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड 9 मिनट्स. सो इज इट 70 डिग्री 9 मिनट्स. सो कैन यू राइट दिस एज 70 डिग्री 6 मिनट्स एंड 3 मिनट्स. क्योंकि 6 तुझे यहां से मिलेगा और 3 तुझे यहां से मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन एकदम मस्त था. हो गया. लास्ट वाला एक बार वापस बोलो बेटा. ध्यान से सुनो सब लोग. स्टॉप राइटिंग. इज इट साइन ऑफ 69 डिग्री 69 मिनट्स, राइट? कैन आई राइट दिस इज 69 डिग्री 60 मिनट्स एंड 9 मिनट्स. टोटल 69 हो गया. 60 मिनट्स को मैं 1 डिग्री बोल सकता हूं. तो इसे 70 डिग्री 9 मिनट्स. बराबर. अभी घड़ी पहनी है तूने? ओके. बाजू वाले ने पहनी है? ओके. मेरी घड़ी में अभी 12:30 हो रहा है. ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं. 12:30 हो रहा है. कैन आई कॉल दिस एज 12:30 के बदले 11:90? एक ही बात है. 11 o'clock 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. तो मैं क्या कर रहा हूं, वो जो 12:30 बोल रहा है ना उसके बदले मैं 11:90 बोल रहा हूं. अच्छा अगर मुझे 10 समथिंग बोलना है तो क्या बोलूंगा? 10 hours 150 minutes. 1 hour is 60 minutes ना बेटा. अगर अभी 12:30 हो रहा है, अभी अगर 12:30 हो रहा है, इसको मैं 11:90 बोल सकता हूं. इसको मैं 10 150 बोल सकता हूं. चलो नेक्स्ट वाला आप ट्राई करो. 9 वेरी गुड. 210 8 270. मैं 1 hour को 60 मिनट्स लिख के इसको इलाबरेट कर रहा हूं. खत्म. लॉजिक समझा बेटा? अभी लास्ट वाला समझा? चलो चारों क्वेश्चंस क्रैक हो जाए फिर बोलो मैं आंसर्स रीड करता हूं. चारों हो गया बेटा? आपका फर्स्ट का आंसर आना चाहिए 0.2170. मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 0.2170. आपका फिफ्थ का आंसर आना चाहिए 0.9386. 0.9386. या मैंने सेवेंथ का आंसर ना फिफ्थ का आंसर बोला. अभी सेवेंथ का आंसर 0.2630. 0.2630. अभी मैं 10th का आंसर बोल रहा हूं. आज का लास्ट क्वेश्चन 0.9406. 0.9406. So ध्यान से सुनो. Today we have learned trigonometric table. Today we have learned 0, 30, 45, 60, 90. Today we have learned 1 degree 60 minutes 3600 seconds. Today we have learned how to see sine table. Today we have learned how to see characteristic, mantissa and log. And finally we have learned anti-log. ये जो मैंने सिखाया ना एकदम अच्छे से रिवाइज करके आओ. ट्यूसडे इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा.
and it will be a spot test. We call this as DCT, daily class test, या तो ICT, which is in class test. Okay, understood the lecture of the day, beta? Super sure? Please stop the recording.